Hi everyone, welcome back to another book reading session. आज जो हम पढ़ेंगे वो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के ऊपर में पढ़ेंगे, ठीक है। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 हमारे रहने वाला है। एंड ये मैं आज जो हम बुक पढ़ रहे हैं ये जनरल एनाटॉमी बाय विक्रम सिंह सार, ठीक है। तो स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमें इसमें क्या मिलेगा? आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर द स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू explain why anatomy is a very precise science, demonstrate normal anatomical position and describe the anatomical plane of the body, recall the terms that are used to describe the joint movement, to know directional term to describe the relationship, make comparison and show laterality, explain why directional terms are relative and must be used in reference to body structure or a body in anatomical position, outline the term used in clinical anatomy, present a brief account of anatomical nomenclature, explain how various anatomical terms are derived, correctly solve the multiple choice question provided at the end of the chapter, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें इतने सारे फ़ायदा मिलेगा या इतने सारे चीज़ को हम समझ पाएंगे। हमारा आज का चैप्टर फिर से बता दे रहा हूँ, एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, ठीक है। एंड ये चैप्टर नंबर 2 है, जनरल एनाटॉमी बाय विक्रम सिंह, ठीक है। एंड इसका एडिशन होता है 4th एडिशन, ठीक है ना। Anatomy is a precise science because of its universally accepted terminology for describing body parts and their location. In order to understand this science, student must master the term used to describe various anatomical structure and features. A brief analysis of this term would not only be an exciting experience but also provide a glimpse into our medical heritage. The majority of anatomical terms are derived from the Greek or Latin, but some of the more recent terms are of German, French, British origin. Many terms that refers to the common plant or animal, namely the word vermis means worm, उसके बाद कॉक्लिया स्टैंड्स फॉर द सेल ऑफ ए स्नेल, कैंसर रेफर्स टू क्रैब्स, वल्वा ये क्या है, यूविला, यूविला मीन्स लिटिल ग्रेप, एंड इवन मसल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मस्क्यूलस which means mouse, ठीक है। Another anatomical terms are derived from the materials and their meanings were used during wars, namely जैसे कि टाइविरॉयड मीन्स शील्ड, जाइफोब्स means sword, thorax means breast plates, sella means saddle, stepis means strip, क्या होता है, ST, ओके। ST IR UPS, strips, stroop,
Stoops. So stoops means stoops. Malleus means anvil, and tympanum refers to drum. Okay. Furthermore, the student can learn this term more easily if they understand the meaning of their prefix and suffixes. Unfortunately, some of the anatomical terms have been coined in honor of various anatomists, surgeon, and physician. Visualize Popper's ligament for inguinal or groin ligament, fallopian tube for uterine tube, etc. Such terms are called eponyms. Eponyms. They have no descriptive basis and cannot be associated with anything, and therefore they must be avoided in use or simply be memorized. Position of the body. Anatomical position. In anatomical position is the reference position of the body. In this position, a person is considered to be standing erect with eyes looking forward at horizon, the upper limbs hanging by side of the body with palm facing forward, the lower limb positioned straight with feet approximated together and flat on the floor and toes pointing forward. Figure 2.1. In the medical profession, the body parts and their relationship are always described, presuming that the body is in anatomical position, although it may lie or be placed in any position. Although in anatomical position, the position of a forearm and hands is not a natural one, it does allow for accurate description. This position is assumed in all anatomical description to ensure accuracy and consistency. In medicine, all description of a human body are made in anatomical position. Fundamental position. It is the same as anatomical position except that the palm of the hand face side of the body. Figure 2.2. This position is often used in discussing the rotation of upper limb, such as pronation and supination. Other position of the body. Some frequently used term in clinical practice referring the body position are as follows. Supine position मतलब recumbent position. The position lies on the back with his or her face directed upward. That is known as supine position. Figure 2.3. Prone position. The person lies on his or her belly मतलब abdomen with his or her face directed towards. Figure 2.4. So these are the position. So anatomical position में ये देखो पाम आगे की ओर रहेगा, बॉडी पूरा इरेक्ट रहेगा एंड आपके आई दोनों पूरा फेसिंग फॉरवर्ड रहेगा एंड एनाटोमी आपका हैंड इस तरीके से रहेगा एंड ख़ास बात है पाम इस तरीके से भी रहेगा एंड आपका ये जो फुट है ये अप्रोक्सीमेट आसपास भी होना चाहिए. सो दिस पोजीशन इज नोन एज anatomical position.
नाउ फंडामेंटल पोजीशन में क्या होता है, फंडामेंटल पोजीशन एनाटॉमिकल पोजीशन जैसा ही होता है, ठीक है। ये लगभग देखो सेम है, हर एक चीज़ आपका सेम है, फुट दोनों आसपास है, ये भी आपका इरेक्ट है, लेकिन फर्क यहाँ पर ये है आपका पाम मतलब ऐसे इस साइड फेस है, जबकि यहाँ पर सामने की ओर फेस है, इधर इस साइड, तो आपके थाई एरिया के साथ ये फेसिंग होता है, तो दिस इज नोन एज फंडामेंटल पोजीशन। नाउ सुपाइन पोजीशन में क्या होता है, आपका चेस्ट ऊपर की ओर रहता है और आपका पाम नीचे की ओर, ठीक है। नाउ प्रोन पोजीशन में आप सीधा लेट जाते हो, मतलब आपका जो चेस्ट एरिया है वो नीचे जाता है एंड जो आपका बैक साइड वो ऊपर रहता है, ठीक है। दिस पोजीशन इज नोन एज प्रोन पोजीशन। एंड ये होता है लिथोटोमी पोजीशन, ये होता है लिथोटोमी पोजीशन। तो ऐसे भी शेप जब बनता है इसे लिथोटोमी पोजीशन बोला जाता है। ये जनरली गायनाकोलॉजी में ये होता है, ठीक है, बेबी डिलीवरी में। नाउ उसके बाद लिथोटोमी पोजीशन यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। लिथोटोमी पर्सन, द पर्सन लाइज सुपाइन, ये सुपाइन है, ये यहाँ पर देखो ये सुपाइन लेटा हुआ है, सुपाइन विथ द बटक एट द एज ऑफ द टेबल, उसका जो बटक एरिया जो होगा एट द एज ऑफ अ टेबल, ठीक है। द हिप्स एंड नी आर सेमी फ्लेक्स्ड एंड द थाइज आर abducted, फिगर 2.5 जो कि ये है। दिस पोजिशन इज यूज्ड फॉर हैविंग adequate exposure to the perineum. Now anatomical plane of the body, there are three fundamental plane of the body, figure 2.6. these are mid sagittal plane और इसे बोला जाता है median longitudinal plane. It passes longitudinally through the sagittal suture मतलब midline and divides the body into इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ, इसे बोला जाता है मिड सजिटल प्लेन और मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन इसे बोला जाता है। नाउ ऑल्दो शोइंग इट क्लियरली ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, these halves are generally symmetrical in structure. The same symmetry does not apply to all internal structure. Now दूसरा होता है sagittal plane और इसे बोला जाता है parasagittal plane. Any longitudinal plane which passes parallel to the mid sagittal plane is termed as sagittal or parasagittal plane. It divides the body into unequal राइट एंड लेफ्ट हाफ्स, ठीक है। तो ये होता है देखो मिड सजिटल प्लेन जो होता है ये होता है मिड सजिटल प्लेन, ये वाला। तो ये क्या करता है, बॉडी को दो तरीके से पूरा डिवाइड कर देता है, ठीक है। एंड ये होता है आपका सजिटल प्लेन, ये होता है मिड सजिटल प्लेन, ये बॉडी को पूरा दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, राइट एंड लेफ्ट टू इक्वल हाफ से। जबकि सजिटल प्लेन किसको बोला जाता है, ये मिड सजिटल प्लेन के साथ ये पैरेलल रन कर रहा है। तो ये जो आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, जो बड़ा एक वर्टिकल जो लाइन है, इसको बोला जाता है सजिटल प्लेन, ये इसके साथ पूरा पैरेलल रन करता है, ठीक है। इट डिवाइड्स द बॉडी इनटू अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ। तो ये देखो सजिटल प्लेन जो होता है ये बॉडी को अनइक्वली कर रहा है, क्योंकि इस साइड अगर आप देखोगे कम है, इस साइड ज़्यादा है, जबकि मिड सजिटल प्लेन में बॉडी दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड है, ये वाला जितना भी है ये वाला भी उतना है, ठीक है। देन कोरोनल और फ्रंटल प्लेन, इट passes longitudinally at right angle to the median plane
and divides the body into anterior and posterior portion. ठीक है, anterior और posterior portion it correspond to the coronal suture, hence termed as coronal plane. तो coronal plane क्या हो जाएगा? coronal plane हो जाएगा आपका ये वाला जो होता है, ठीक है, दिस वन इज योर coronal plane. ये क्या करता है? बॉडी को एंटेरियर पोस्टेरियर दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, ठीक है. सो आगे की तरफ जो होगा आपका चेस्ट एरिया, दिस इज नोन एज एंटेरियर, एंड आपका बैक साइड हो जाएगा पोस्टेरियर, ठीक है. नाउ ट्रांसवर्स प्लेन, और इसे बोला जाता है हॉराइजॉन्टल और क्रॉस सेक्शनल प्लेन. ट्रांसवर्स प्लेन और इसे बोला जाता है हॉराइजॉन्टल और क्रॉस सेक्शनल प्लेन. इट पासेस पैरेलल टू द होराइजन मतलब ग्राउंड at a right angle to the long axis of the body, dividing the body at any level into superior, upper and inferior lower portion. superior मतलब upper, inferior मतलब आपका lower. It is perpendicular to the median plane. It is perpendicular to the median plane. So ये होता है हॉराइजॉन्टल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन, जो कि क्या करता है? बॉडी को सुपेरियर एंड इन्फेरियर दो हिस्सों में डिवाइड करता है. लेकिन यहाँ पर कोई इक्वल अनइक्वल ऐसा कोई अनइक्वल तो रहेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन ऐसा इक्वल का कंसेप्ट नहीं है. जैसे यहाँ पर ये अगर डिवाइड करेगा इसको राइट एंड लेफ्ट हाफ इक्वल, तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पर. इट इज परपेंडिकुलर टू द मीडियन प्लेन. नाउ एनबी क्या होता है? एनी प्लेन अदर देन मिड सजिटल, कोरोनल, ट्रांसवर्स इज टर्म्ड एज oblique plane. Whenever the plane passes through the center of the body, be it sagittal, frontal or transverse, it is referred to as the cardinal plane because it divides the body into equal parts. The point at which the three cardinal planes intersect each other is the center of gravity. The plane commonly used in clinical practice are drawn in figure 2.7a and b. The plane commonly used in clinical practice are drawn in figure 2.7a and b. So ये हो गया figure 2.7, ये हो गया a, ये हो गया आपका b. The major anatomical plane of the body are summarized in table 2.1. So anatomical terms के बारे में जानेंगे. यहाँ पर ये descriptive term है. Term used to describe the relationship between the body parts and structure. बॉडी के जितने पार्ट होते हैं एंड उनका जो स्ट्रक्चर होता है टू ईच अदर आर एज फॉलोज. सो फिगर 2.8 ए से लेकर के डी, जो कि आगे देखेंगे. एंटेरियर टुवर्ड्स द फ्रंट एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी मतलब आपका चेस्ट पोर्शन. पोस्टेरियर टुवर्ड्स द बैक एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी मतलब आपका पीछे की ओर. तीसरा होता है सुपेरियर टुवर्ड्स द हेड के आसपास जो एरिया होता है जो इंडिकेट करता है वो सुपेरियर होता है. टुवर्ड्स द फीट मतलब आपके पैरों के तरफ जो इशारा करता है उसे इन्फीरियर कहा जाएगा. सेंट्रल किसको बोला जाएगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, दैट इज नोन एज सेंट्रल. देन 6th नंबर पर आपका पेरीफेरल आ जाएगा, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ मास ऑफ द बॉडी. ठीक है, सेंटर ऑफ अ मास ऑफ द बॉडी से आप जितना दूर जाओगे उसे बोला जाएगा पेरीफेरल.
देन मेडियन, एलोंग द मिड सजिटल और मेडियन प्लेन, इसे बोला जाता है मेडियन, ठीक है। मेडियाल क्या है, टुवर्ड्स द मेडियन प्लेन, मेडियन प्लेन के आसपास जो एरिया होता है। लैटरल क्या होता है, अवे फ्रॉम द मेडियन प्लेन, मेडियन प्लेन से अगर आप दूर जाओगे तो उसे बोला जाएगा लैटरल। देन इंटरमीडिएट, बिटवीन द medial and lateral, between the medial and lateral, मेडियल और लैटरल के बीच में जो प्लेन होता है उसे बोला जाता है इंटरमीडिएट, ठीक है। नाउ सो यहाँ पर कुछ मेजर एनाटॉमिकल प्लेन ऑफ द बॉडी के दिया गया है, जैसे कि मिड सजिटल प्लेन, इसे मेडियन प्लेन भी कहा जाता है। ए लॉन्गिट्यूडिनल मतलब वर्टिकल प्लेन हुइच डिवाइड, लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या होता है, वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल प्लेन हुइच डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल्स राइट एंड लेफ्ट हाफ्स, इसे मिड सजिटल प्लेन बोला जाता है या फिर मेडियान प्लेन बोला जाता है। दूसरा होता है सजिटल प्लेन, ए लॉन्गिट्यूडिनल वर्टिकल प्लेन हुइच डिवाइड द बॉडी इनटू अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स। जाहिर सी बात है इक्वल तो कभी नहीं आएगा, इक्वल कहाँ पर आता है, मेडियान पर आता है, सजिटल प्लेन में नहीं आता है। कोरोनल प्लेन, कोरोनल प्लेन क्या होता है, ए लॉन्गिट्यूडिनल वर्टिकल प्लेन व्हिच डिवाइड्स द बॉडी इनटू एंटीरियर मतलब फ्रंट, पोस्टीरियर मतलब बैक पोर्शन, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन। देन ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन क्या होता है, ए हॉराइजॉन्टल प्लेन व्हिच डिवाइड्स द बॉडी या फिर पार्ट ऑफ द बॉडी इनटू अपर मतलब सुपेरियर एंड लोअर मतलब इंफीरियर पार्ट्स, दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स प्लेन। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले एक और बुक रीडिंग सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।